Very good morning, dear students. We are studying the coordination in animal, and we have completed the endocrine glands. Means in animals or in humans there are two types of coordination system: hormonal and neural coordination system. We have finished the hormonal coordination system. In that part we have studied about the different glands, their secretion and some related diseases. Now we will focus to the neural coordination. Clear? न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के रूप में. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CNS, PNS and ANS. Central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. The whole nervous system of animal is made up of neuron. Means neurons is the functional unit of nervous system or nervous tissue. We have learned about neuron in class 9 also. So it is in simply a revision class of neuron. न्यूरॉन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, बिकॉज न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ nervous system, and we have to study about the nervous system. So at first we will revise or we will study about the neurons. Clear? देखिए, एक दो पॉइंट हम लोग पहले से ही जानते हैं. न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल. ये सबसे लंबा सेल होता है. सिंस इट इज लॉन्गेस्ट सेल, तो ये लॉन्गेस्ट कहां से, फ्रॉम वेयर? तो इसके पार्ट को समझते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट क्यों है. ठीक है? तो न्यूरॉन इट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 पार्ट्स: डेंड्राइट्स, साइटॉन एंड एक्सॉन. Cyton is also known as cell body because nucleus and cytoplasm both are present in cytoplasm. ठीक है? Means cytoplasm consists of nucleus and cytoplasm. So cyton is also known as cell body. This cyton has two types of projection from it. First, some numerous hair-like projections. These are hair-like projections from the cyton. And these hair-like projections are known as dendrites. It has 1 or 2 elongated projection, and those elongated projection is known as axon. Generally, one neuron has 1 axon, but sometimes more than 1 axon is also found. So these axon या elongated projection is known as axon. Clear? Axon may be myelinated, means it may contain myelin sheath or it may not. If axon या neuron contains myelin sheath, then those neuron are known as myelinated neuron या myelinated nerve. If they did not contain myelin sheath, then they are known as non-myelinated neuron. ठीक है? क्लियर? चलिए, अब सब के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी. डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन का फंक्शन क्या क्या है. क्लियर? इनकी स्पेशलिटी क्या होती है. तो ये न्यूरॉन जो है, दे कैन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलस. एक्चुअली each and every living cell can detect the different types of stimulus and can respond according to them. जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सभी की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को डिटेक्ट करे और उसके प्रति कुछ न कुछ रिस्पॉन्स दे. क्लियर? न्यूरॉन की स्पेशलिटी क्या है? तो इट कैन डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस. इट कैन क्या बोलते हैं उसको, interpret them, make
it can make a decision, and it can control different organs or different tissues also. ये इसकी स्पेशलिटी है. खुद के लिए हर एक सेल स्टिमुलस को गेन कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ही है स्टिमुलस को गेन करना, उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट करना, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तैयार करना और उस रिस्पॉन्स को किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या फिर टिश्यूज के पास पहुंचाना और वो रिस्पॉन्स का काम करवाना. ठीक है, ये इनकी स्पेशलिटी होती है. तो ये किस प्रकार से रिस्पॉन्स को, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और डिफरेंट ऑर्गन के पास ये सेंड करने का काम करेंगे, यही पढ़ना है हम लोगों को इस पूरे टॉपिक में. क्लियर? So it has numerous dendrites, and these dendrites, hair-like projections, they are specialized for receiving a stimulus. What are their specialization? They are specialized for receiving a stimulus. किसी प्रकार के स्टिमुलस को ये रिसीव कर सकता है. अब एक ही न्यूरॉन हर प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करे ये जरूरी नहीं है, बट ठीक है, क्लियर? तो ये किसी प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करता है. रिसीव करने के बाद दे कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. क्लियर? Dendrites, hair-like projections from the cyton, they receive any type of stimulus and convert them into electrical impulse and passes towards the cyton. उनका काम हो गया. स्टिमुलस को रिसीव किए, इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट किया और साइटोन को दे दिया. और साइटोन समझेगा क्या करने का. साइटोन दे रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम डिफरेंट डेंड्राइट्स, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन उसको चूज करता है, एंड पासिस टुवर्ड्स द एक्सॉन. नो एक्सॉन, it carries the strongest stimulus from cyton to axon bulb. क्लियर? स्ट्रॉन्गेस्ट वन को ये चूज करता है और सेंड करता है एक्सॉन की ओर. एक्सॉन उस स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स को कैरी फॉरवर्ड करके लेके पहुंच जाता है एक्सॉन बल्ब की ओर. यही है इसका रोल. ठीक है, क्लियर? अब कुछ और टर्म है इसमें, जैसे कि myelin sheath, it may covered with myelin sheath. Those myelin sheath are produced by Schwann cell. माइलिन का जो कवर उसके ऊपर चढ़ा होता है वो माइलिन का कवर, यानी कि माइलिन जो केमिकल है, दैट इज सेक्रेटेड बाय द Schwann cell. These are the Schwann cell, and these Schwann cell are discovered by Mr. Schwann. क्लियर? ये उनके ही नाम पे इसका नाम Schwann cell पड़ गया. Between two Schwann cells there may be a gap. एक गैप देखने को मिलता है, and that gap is discovered by Ranvier, so it is named as node of Ranvier. क्लियर? ये हो गया हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. हम लोग ये समझते हैं कि अब एक ही न्यूरॉन हमारे रिसेप्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक तो नहीं पहुंचेगा. देयर मे बी कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन टू न्यूरॉन, and neuron to neuron connection always from dendrite to axon bulb, means the axon bulb of first neuron, ठीक है, and dendrite of the next neuron. ये जो पहला न्यूरॉन है इसका axon bulb, और फिर से इसी के आगे हम लोग दूसरा न्यूरॉन लगा देंगे. तो जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा वो जुड़ा हुआ अपने डेंड्राइट से. क्लियर? फिर उसके पीछे तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार से न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन होता चला जाता है. और इस कनेक्शन में एक ही पॉइंट हमको दिमाग में रखने का है कि वो कनेक्शन जब भी होगा तो फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन बल्ब और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच. क्लियर? इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि डेंड्राइट टू एक्सॉन बल्ब, फिर डेंड्राइट टू एक्सॉन बल्ब, फिर डेंड्राइट टू एक्सॉन बल्ब, यानी कि इट इंश्योर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन. क्योंकि डेंड्राइट ये इंपल्स को रिसीव करने के लिए बना हुआ है और एक्सॉन बल्ब ये डेंड्राइट को रिलीज करने के लिए, इंपल्स को रिलीज करने के लिए बना हुआ है. यहां से इंपल्स क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा और इस तरफ से होते हुए पास होते हुए एक्सॉन बल्ब उसको रिलीज करेगा.
फिर अगला जो डेंड्राइट है वो उसको कैच करेगा, रिसीव करेगा, फिर से कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने एक्सॉन बल्ब के थ्रू उसको रिलीज करेगा। इस प्रकार से वन वे ही हो सकता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। क्लियर? कभी भी इस तरफ से वापस इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। समझ में आई बात? अब एक पॉइंट और समझेंगे हम लोग कि वी हैव सेंसरी ऑर्गन एंड दो सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव्स different types of stimulus. As for example, we have I have photoreceptor which receives the lights or images. Clear? Algesireceptor which receives the pain, gustatoreceptor which receives the taste. इस प्रकार से हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं और 5 सेंस ऑर्गन से डिफरेंट प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करके, ठीक है, रिसीव करने के बाद उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है वो रिसेप्टर ऑर्गन्स, और उसको भेज देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट करता है, एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और उस रिस्पॉन्स को रिसेप्टर और इफेक्टर ऑर्गन के पास सेंड करने का काम करता है। अब मैसेज तो एक ही तरफ से जा रहा है, ठीक है, यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन की ओर ये पहुंचाना आसान, समझ गए? रिसेप्टर ऑर्गन की ओर कौन सा एंड होगा न्यूरॉन का? तो होगा डेंड्राइट। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर कौन सा पार्ट होगा? तो होगा एक्सॉन बल्ब। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रेट करने के बाद अब वहां से जब न्यूरॉन निकलने शुरू होंगे तो वहां से जो एंडिंग होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर होगा डेंड्राइट। क्लियर? और इफेक्टर ऑर्गन की ओर होगा एक्सॉन बल्ब, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन की ओर मैसेज को लेकर के जाना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर होगा डेंड्राइट एंड इफेक्टर ऑर्गन की ओर होगा एक्सॉन बल्ब। इफेक्टर ऑर्गन मीन्स वो ऑर्गन जो काम करने जा रहा हो, वो ऑर्गन जो उस एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को एक्ट करने जा रहा हो। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि अभी आपसे एक सवाल पूछा जाए, कोई भी सवाल, if we ask any question to you, you will listen from your ear. अब ईयर ड्रम में वो सवाल जाके बीट करेगा और एक रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस क्रिएट करेगा, वो स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। ब्रेन उस सवाल के रिस्पॉन्स में एक जवाब, एक आंसर क्रिएट करेगा, दैट इज द रिस्पॉन्स। अब वो दिमाग में वो जवाब है, बट एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीका हो सकता है, या तो वो मुंह से बोल करके या तो वो हाथ से लिख करके। करेक्ट? तब किस प्रकार से रिस्पॉन्स देने का है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा। अगर सिर्फ मौखिक ही ओरल ही जवाब देना हो तो वो जो रिस्पॉन्स क्रिएट किया गया हमारे ब्रेन में कि भाई इसका आंसर ये होना चाहिए, अब वो आंसर हमारे जुबान तक लाया जाएगा और हम अपने मुंह से, टंग, लिप की मदद से उस आंसर को रिप्लाई करेंगे। अगर लिखना हो, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंखों से पढ़ते हैं, फिर से वो क्वेश्चन आपके ब्रेन तक लाया जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट आंसर तैयार करने के बाद आप खड़ा होकर बोलना शुरू नहीं कर देते, वहां पे आप क्या करते हैं, तो आपका ब्रेन आपके हाथों को कंट्रोल करता है कि भाई इस प्रकार से लिखने का। तो वहां पे इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गए? हमारे हाथ में भी फिंगर्स। समझ में आई इफेक्टर ऑर्गन का मतलब? क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। कल की वीडियो हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस, एएनएस, एएनएस ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, यही सब हम लोग को और समझना होगा। क्लियर? सो टेक केयर।